Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture is regarding the joint. The study of the joint is called as arterology. What do you mean by joint? Joint is a meeting place between bone, cartilage or bone and cartilage. Primary function are provision of growth, strength and movement. We can classify joint according to the nature of the connective tissue. So joints are classified into solid joint and cavitated joints. What are solid joints? Solid joints are those joints in which the meeting point between the bone is occupied by connective tissue, and this type of joint is called as solid joint. We can classify solid joint as fibrous joint, cartilaginous joint, mixed joint, interchondral fibrous joint, osteochondral fibrous joint. So we can study it in detail. What are fibrous joint, fixed joint? The fibrous joint are called as synarthrosis. In the connective tissue between the meeting point of the two bones is fibrous. Cartilaginous joint. Cartilaginous joint are those joints in which the meeting point between the two bones is occupied by cartilage. Mixed solid joint, in which the meeting point between the two bones is occupied by partially fibrous and partially cartilaginous tissue. Interchondral fibrous junction, the joint. The name indicates interchondral. It means the joint is between the two cartilage and the meeting point between the two cartilage is occupied by fibrous tissue. So connective tissue at the junction between the cartilage is fibrous. Example, cartilages of the larynx, cartilages of the nose. Osteochondral fibrous junction, the name indicates that at one side the meeting point is bone and the other side is cartilage, and in between is fibrous tissue. So we can say connective tissue between bone and cartilage is fibrous. Example, nasal bones and nasal cartilages. So we can classify fibrous joint. What are fibrous joints? So the classification of the fibrous joint is, we can classify the fibrous joint according to the grade of the movement. First of all, sutures. Sutures resembles seam or stitch limited to the skull. So we can classify fibrous joint into one as suture, second one is syndesmosis, and third one is gymphosis. So there are three types of the fibrous joint. One is suture, second one is syndesmosis, and third one is gymphosis. So we can classify suture as plain suture, squamous suture, serrate suture, limbus suture, denticulate suture, shindylisis, and metopic suture. So there are different types of the sutures, and I have already told you that the sutures are limited to the skull region. So what are plain suture? Plain suture are those sutures in which the simple apposition of two perpendicular surfaces of the bone. Example, two maxilla are united with each other through plain suture. So intermaxillary suture. Second one is squamous suture. Squamous sutures are those sutures in which the opposing margins are reciprocally beveled. Example, टेम्पोरल एंड parietal bone एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं थ्रू टेम्पोरोपाइटल suture. Third one is serrate suture. Serrate sutures are those sutures in which the contiguous margins are saw-like, having alternate apical processes and depression. Example is two parietal bone एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं through a suture, that is also known as sagittal suture or serrate suture. Limbus is the combination of in which हमने पहले कहा कि जो स्क्वेमस सुचर्स होते हैं उनमें हमने कहा था कि वो बी वेल्ड होते हैं, ठीक है, और जो सिरेट सुचर्स होते हैं हमने कहा था वो सिरेटेड होते हैं. तो मार्जिन्स आर बोथ सिरेटेड एंड स्क्वेमस.
Example is temporoparietal suture. Another one is denticulate suture. टूथ लाइक प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस जो एक दूसरे के अंदर फिट होती हैं. एग्जाम्पल इज लैम्बडॉइड सुचर. शिंडिलाइसिस. शिंडिलाइसिस इज इन विच द वेज फिट होता है इनटू द ग्रूव ऑफ अनदर बोन. एंड लास्ट वन इज मिटोपिक सुचर. ओनली प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ. सेपरेट्स सेम बोन. लेटर ऑन डिसअपियर. एग्जाम्पल इज टू फ्रंटल बोन एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होती हैं थ्रू अ मिटोपिक सुचर. दैट मीन विद द पैसेज ऑफ एज टू फ्रंटल बोन एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाती हैं और उनके दरमियान में जो सुचर होता है वो ख़त्म हो जाता है. तो दैट वन टाइप ऑफ द सुचर इज नोन एज मिटोपिक सुचर. सो हमने कहा कि प्लेन सुचर होता है. नेक्स्ट वन हमने बात की थी कि यहाँ पे जी सेकेंड सुचर इज स्क्वेमस टाइप ऑफ द सुचर. इन द स्क्वेमस टाइप ऑफ द सुचर हमने कहा था कि बीवेल्ड होती है. दीज आर द बीवेल्ड आर्टिकुलर सर्फेसेस जो एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगी थ्रू अ सुचर नोन एज स्क्वेमस सुचर. थर्ड वन हमने कहा था कि जी यहाँ पे सिरेट सुचर होता है. सिरेट सुचर में हमने कहा था कि मार्जिन होते हैं वो सॉ लाइक होते हैं. ठीक है. एपिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं जो एक दूसरे के अंदर फिट होती हैं. सच टाइप ऑफ द सुचर इज नोन एज सिरेट सुचर. फिर हमने कहा था कि लिम्बस सुचर होता है. हमने कहा था कि जो लिम्बस सुचर होता है उसके अंदर उसकी जो सर्फेसेज होती हैं वो बी वेल्ड भी होती हैं और सिरेटेड भी होती हैं. तो दोनों होंगे, बी वेल्ड भी होंगी और सिरेटेड भी होंगी. उसको हमने कहा था कि दीज आर द लिम्बस सुचर. डेंटिकुलर सुचर में हमने कहा कि डेंटिकुलर सुचर्स के अंदर टूथ लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. दीज आर द टूथ लाइक प्रोजेक्शंस. और दूसरी अनदर बोन जो मीटिंग बोन है उसके अंदर डिप्रेशन होगा. एक बोन में एलिवेशन होगी टूथ लाइक और दूसरी में डिप्रेशन होगी. दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगी. सच टाइप ऑफ द सुचर इज नोन एज डेंटिकुलेट सुचर. शिंडिलाइसिस में हमने कहा था कि लॉन्ग वेज होता है. ये लॉन्ग वेज है. एक बोन के अंदर लॉन्ग वेज होता है और सेकेंड बोन जो है उसके अंदर ग्रूव लाइक सरफेस होती है जिसमें ये वेज आके फिट हो जाता है थ्रू अ सुचर और इसको हमने नाम दिया था शिंडिलाइसिस. ठीक है. उसके बाद हमने बात की थी कि हमने कहा था कि फाइब्रस जॉइंट जो है हमने उसको क्लासीफाई किया था इनटू 3 पार्ट्स. हमने कहा था सुचर्स होते हैं. सेकेंड वन हमने कहा था गुम फोसेस होता है. व्हाट इज गुम फोसेस? गुम फोसेस जो है वो पैक्ड एंड सॉकेट्स भी आप इसको कहते हैं. इसमें टीथ जो है वो पैक बनाता है और एल्वुलर जो प्रोसेस होते हैं जैसे मैक्सिला है या मैंडिबल है उसके अंदर सॉकेट्स बनते हैं और ये टूथ जो है वो अपने सॉकेट के अंदर आके फिक्स हो जाता है. सच टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज गुम फोसेस. गुम फोसेस की अगर आप पिक्चर देखो ये टूथ है. टूथ ठीक है. टूथ जो है वो फिक्स हो रहा है इनटू अ सॉकेट ऑफ अनदर बोन. तो सच टाइप ऑफ द सुचर इज नोन एज गुम फोसेस. एंड द लास्ट वन इज सिंडेस्मोसिस. व्हाट इज सिंडेस्मोसिस? The long surfaces of the bones are joined होती हैं by means of a fibrous tissue in the form of a membrane. Small degree of the movement is possible. मिडल रेडियो जो अल्नर जॉइंट्स होते हैं एक रेडियस और अल्ना आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स होती हैं थ्रू अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर. दिस टाइप ऑफ द जॉइंट इज नोन एज सिंडेस्मोसिस. टिबिया फिबुला भी एक दूसरे के साथ इसी तरह यूनाइट होती है और रेडियस और अल्ना भी यूनाइट होती है. जैसे ये आपके सामने यहाँ पे ये देखो अल्ना की बोन है, ये रेडियस है. दोनों अल्ना और रेडियस अपर पार्ट में स्पीड की रेडियो अल्ना जॉइंट बनाती है लेकिन मिडल जो पोर्शन होता है यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ मेम्ब्रेन लाइक टिश्यू. सच मेम्ब्रेन लाइक टिश्यू इज नोन एज सिंडेस्मोसिस. और इस जॉइंट के ऊपर स्लाइड मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है. तो होप सो आपको क्लासिफिकेशन में आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पढ़ी है उसमें आपको पहली क्लासिफिकेशन जो है वो समझ आ गई होगी. हमने जॉइंट को क्लासीफाई किया फाइब्रस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट की हमने जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर. थैंक यू सो मच.